Good morning, my dear respected students. Today, again, we are begin with a new sample paper. This sample paper is not related with the previous one, which we have discussed in our previous session. Actually, this is a new one. And again, my dear respected students, for your reference, if you want to download the same along with the answer key for practice, you can download. The link will be available in the description box, and hopefully you download and use that content for your final examination preparation. Okay, I'm just going to display the content here, my dear respected student. Kindly concentrate. Here it is. The content is kindly concentrate. It's my humble request. We are just begin with the first one. Okay, and I'm just going to maximize the screen because it is very important to see that content in appropriate way. Here it is, the content we have begin with. Wait for 1 minute, please. Okay. Now, it's my humble request, kindly concentrate. It says find the valid identifiers from the following. आपको इसमें से valid जो identifiers हैं वो आपको देखने हैं. And when we are looking for identifiers, one and most important thing in our mind that in spite of underscore, we are not using any kind of symbols. अंडरस्कोर को छोड़ के हम कोई और सिंबल का प्रयोग नहीं करते. आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए इसमें कहां पे आपको कोई अदरवाइज कोई इन स्पाइट ऑफ अंडरस्कोर कौन कौन सी लोकेशंस है जहां पे आपको कुछ और सिंबल्स नजर आ रहे हैं. दैट इज आई थिंक सो सेक्शन नंबर ए एंड डी. चेक करिए एक बार जरा कि आपको जो सेक्शन ए है वहां पे @ का सिंबल नजर आ रहा है और जो सेक्शन डी है वहां पे एंड का सिंबल नजर आ रहा है. इट मींस सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैंने कहा कि these symbols are not expected. In such case we can say that these two options supposed to be eliminated. इसको हमको जो है eliminate करना पड़ेगा. Okay, next we are talking about RTY, which is a second option. You find that this one is correct? Yes, this is correct. Why so? Because this is only having a alphabets. Okay, C part which says underscore RTY and again underscore. This is to be considered as a correct one. Do you think so? Okay. If you have any kind of question in your mind, you can ask to your teacher. Here it is. I'm just going to open a screen. It's my humble request. Kindly concentrate. It says, for your better clarity, for C part, I'm just going to mention here underscore RTY underscore is equal to 12. Hit the enter key. Underscore RTY. Again, here it is. If I'm correct, 1, 2, 3, and 4. And I'm just going to hit that and display that it stores a value that is 12. Now it's clear that in spite of using any other symbol, we are supposed to use the symbol that is an underscore. Okay. It means, my dear respected student, this is to be considered as a correct answer of that particular question. I'm just going to make it a red. Okay, now very important thing. Second question says, my dear respected student, what will be the output of the following code? Here it is. सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि ये LST जो आपको नजर आ रहा है, what do you understand by this LST? ये है क्या? लिस्ट है. ओके, वेरी गुड, ग्रेट. आपने बोला लिस्ट है. अब हमने यहाँ पे आके ये भी बता दिया लिस्ट है. कंवलजीत सर ने यहाँ पे टाइप किया और लिखा LST, तो आपने सॉरी TY, नो प्रॉब्लम, TYPE, और कंवलजीत सर ने यहाँ पे टाइप किया LST एंड हियर इट इज, हिट द एंटर की. क्लासेस लिस्ट, बिल्कुल परफेक्टली बताया आपने. ओके, नाउ व्हाट हैपन हियर, माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, काइंडली कंसंट्रेट. In next line this says, here it is LST, and after that there is a colon, and after that this is a value that is 2. What do you understand by this one? Okay, first says a starting point, after that it says a stop point, and 2 says that how many times they are supposed to increment. मेरी बात समझ आई होगी आप लोगों को. वो कहता है कि जो फर्स्ट कॉलम है वो बताता है कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, आप दूसरा कॉलम बताएगा कि आप एंड कहां पे कर रहे हैं, और तीसरा बताएगा कि कितनी बार आपने इंक्रीमेंट किया. मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा.
what I am going to do here, I am just going to copy this content and I am just going to paste this content here on this screen. कवल जी सर ने क्या किया इधर देखिएगा. अब जैसे ही हमने यहाँ पे हिट किया और मैंने बाद में लिखा LST, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली कंसंट्रेट. पहले मेरे पास LST के अंदर क्या था मेरे प्यारे बच्चों? हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके. After that, what we are going to do, we are supposed to add some content within that particular list. And what they are going to do, because remember, list is supposed to be modified. आप उसको modify, change कर सकती हैं. अब मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट दिया फर्स्ट लोकेशन पे. पहले क्या था? 1 था. अब क्या आ गया? 10. उसके बाद एक वैल्यू छोड़ के फिर क्या आ गया? 20. फिर क्या? 30. फिर क्या? 40. फिर क्या? 50. दिस इज द आउटपुट विच इज एक्सपेक्टेड, जो आपका आउटपुट है. और आप ये वाला आउटपुट है जो आपको इसका आंसर कंसीडर हो जाएगा. मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई? ओके. आफ्टर दैट इट सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको आंसर देना है वेदर इट इज अ ट्रू और वेदर इट इज अ फॉल्स. CSV पहले, सबसे पहले मेरे बच्चों को जब हम CSV की बात करेंगे क्या लिखेंगे? इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएगा. उसके बाद कवल जी सर ने क्या बोला? CSV मॉड्यूल कैन बी यूज्ड, ओके, used to process comma separated values in the form of list, okay, to find or extract the sublist. क्या ये आपको फाइंड करने में लिस्ट या आपको सबलिस्ट फाइंड करने में करती है? कहता नहीं. दिस इज टू बी कंसीडर एज अ फॉल्स. कवल जी सर ने यहाँ पे मेंशन किया और यहाँ पे लिखा नो, द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर इज टू बी कंसीडर एज अ फॉल्स. अब मेरा बेटा जरा ध्यान दे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is again considered to be as an important one. मेरा बेटा जरा मेरी बात ध्यान से सुनेगा. Specify the modules. Modules mention करिए. To which the following function. सबसे पहले SQRT. क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? स्क्वायर रूट का मॉड्यूल को हम क्या मिलेगा आपको? अरे वाह क्या बात है. अब मेरे बेटे ने क्या किया? मेरे बेटे ने मुझे बोला द करेक्ट आंसर इज टू बी कंसीडर एज, अगर हम SQRT मॉड्यूल की बात करें और मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि इसका हम लिख सकते हैं विच इज टू बी कॉल्ड एज अ मैथ. ओके डन, वेरी गुड. नाउ सेकंड वन इज टू बी कॉल्ड एज अ रैंडम इंटीजर. आप थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर सकते हैं मुझे कि क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अरे वाह, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि दिस वन इज टू बी कंसीडर एज अ रैंडम. बिल्कुल ठीक है. अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा जरा. Very good. Now fifth question says why the following code is not working. ये वाला कोड जो है ये वर्क नहीं कर रहा. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर सपोज टू चेक हियर दैट दिस इज अ T. My dear respected student, this is very important to understand why this code is not working. I'm just going to hit the enter key and here it is T, the content will be there, and when we type T, it says type T and hit the enter key, it says this is a tuple. And tuple, is it possible to modify the content of tuple? No, नहीं कर सकते, हम उसको modify नहीं कर सकते. That's why what happen here it is they are supposed to increment the value. T is supposed to be, here it is assignment operator is going to be used, which is not allowed in the tuple because we are not going to make any kind of addition in that. मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई. नेक्स्ट सेज काइंडली कंसंट्रेट. डैश डिसाइडेड दैट टू रिप्रेजेंट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट लाइक रोल नंबर, नेम, मार्क्स यूजिंग लिस्ट, दैट इज दिस. ओके, हमने क्या किया? मैंने लिखा L इज इक्वल टू और मैंने लिस्ट ले लिया. मैंने यहां मेंशन किया 3. After that, here it is comma, then there is ABC in spite of, okay, no problem, we take it as ABC only, ABC, and next will be 67, I think so, 67. Okay, we are going to hit the enter key. Okay, now we are going to read the next statement. Now she wants to also maintain the subject name physics. वो physics name जो है वो add करना चाहती है in the same list. ठीक है, वो लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहती है. राइट द पाइथन स्टेटमेंट विच शी कैन यूज टू कंप्लीट द जॉब इन दिस रिस्पेक्ट.
अगर मैं अब यहाँ पे आके ये करूंगा तो ये तो ऐसे लिख रहा है इसको। अब मैंने क्या किया, फंक्शन किया अपेंड, मैंने फंक्शन अपेंड यूज किया लिस्ट के साथ, और कवलजीत सर ने लिखा क्या, PHYSICS, इफ आई एम माय स्पेलिंग्स आर करेक्ट। जैसे कवलजीत सर ने लिखा और एंटर हिट किया तो अब क्या हो गया कि वो लिस्ट के अंदर जो चीज आप ऐड करना चाहते थे वो चीज आपको मिल गई। विद द हेल्प ऑफ विच फंक्शन मेरे बेटा जी, विद द हेल्प ऑफ अपेंड। अपेंड में आप लिस्ट के अंदर आप कुछ एडिशन कर सकते हैं। मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई। Next it says, kindly concentrate, it's my humble request. Here it is, it says a tuple is declared as t with that values. ये values given है, जो values यहाँ पे mention की गई हैं। कवलजीत सर ने क्या किया, यहाँ पे आए और enter hit कर दिया। Okay, invalid character, no problem at all. मैंने यहाँ पे आया और कवलजीत सर ने क्या बोला, इसको बोला, ये एक्चुअली ना वो टाइपिंग में हम कई बार उसको वो जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको एंटर किया, अब हो गया। ओके, नाउ हियर इट इज, आई एम गोइंग टू हिट द टी एंड एंटर की, डिस्प्ले द कंटेंट। अच्छा, आप ध्यान से सुनना वो क्या कहता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ टी? लेंथ टी, लेंथ जो टी की लेंथ है, आप गाइड कर सकते हैं मुझे, टी की लेंथ क्या होगी आपके अकॉर्डिंग टू? अरे वाह, कैसे आपने जस्टिफाई किया इस चीज को? सबसे पहले आपने इसको 0 कंसीडर कर लिया, इसको आपने क्या किया, 1 किया, इसको आपने 2 किया और इसको आपने 3 किया। अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो मैं कहूंगा 1 2 3 एंड 4। क्या एक बार हम चेक कर लें इस चीज को? क्या हम चेक करें? मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ टी, मैंने यहाँ पे आके जैसे एंटरेट किया, वेरी गुड, ग्रेट, आपने तो बिल्कुल आंसर करेक्ट दिया। हियर इट इज, इट सेज द साइज विल बी 4। अच्छा, अब वो कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी डॉट काउंट 34। अब उसने किया, वो कहता है कि अगर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ टी डॉट काउंट और मैं काउंट में लिख देता हूँ 34, क्या ये कुछ आपको वैल्यूज काउंट करके देगा या ये आपको 0 देगा? अगर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर पाए इस बारे में। वो आप 2 इसलिए कह रहे हैं कि मेरे को लगता है शायद आप 2 इसलिए बोल रहे हैं दैट यू आर चेकिंग दैट हियर इट इज अ वैल्यू 34 एंड अगेन हियर इट इज अ वैल्यू दैट इज 34, बट this is a combination, this is to be considered as a one index. Remember this thing, this is not a single value, this is a combination here. ये combination है, ये single value नहीं है। अब मैंने क्या किया, whenever I am going to hit the enter key, it says that it is 0. why so? why? अब जरा चेक करिएगा आपका जो है। अब कवलजीत सर ने क्या किया, कवलजीत सर ने लिखा काउंट और कवलजीत सर ने यहाँ पे लिखा 11 और ऐसी एंट्रेट किया, ये 1 आया। क्यों आया बेटा? आपने खुद ही मुझे ये गाइड किया है, यू हैव discussed, we have discussed that content already, that this is a 0 index location, this is a 1 index location, and here it is a group of values will be there in the form of list. Again here it is a group of values is there in the form of tuples. Again here it is a value that is a 11. So if we have, in spite of 11 we have 34, then it says 1, otherwise because it says that 34 is 0. मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई? मेरे बेटा नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, कहता है नेम द बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस। बिल्ट इन का मतलब जो सिस्टम में पहले से ही होते हैं, विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम। मेथड दैट इज यूज्ड टू रिटर्न अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। यार ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, मुझे लग रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अगर मुझे स्क्वायर रूट की बात करनी है तो कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो या फंक्शन है जो पहले से अवेलेबल है? SQRT। मेरे बेटे ने बोला SQRT, कवलजीत सर ने लिख दिया और यहां पे आ गया बिल्कुल ठीक कि आपने स्क्वायर रूट बोला है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर, मेरे बेटा जी लिखा है नेम द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बताइए। प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो अगर मैं स्कूल आ रहा हूं तो मेरे टाई इस कलर की होनी चाहिए, शर्ट इस कलर की होनी चाहिए, मेरा ब्लैंकेट जो है इस कलर का होना चाहिए। दिस इज द प्रोटोकॉल दैट वी हैव टू फॉलो। Here it is, it says name the protocol which can be used to accomplish the two-way communication with live audio and video. आपको लाइव ऑडियो और वीडियो दोनों चीजों का आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दोनों चीजों के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो आप यूज करेंगे? नाम से ही जस्टिफाइड हो जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। यहां लिखा है, आप चेक करिए, VoIP। इसका मतलब क्या हुआ? VoIP सेड क्या कहता है ये? वॉइस ओवर
इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहता है ये वो प्रोटोकॉल है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वी इटसेल्फ सेज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें आपको वो सुविधा मिलेगी जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। दिस इज टू बी कंसीडर एज अ VoIP। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा मेरा बच्चा, इट सेज डैश इन अ हरी, वो जल्दी में है, टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट विद इन द डेडलाइन। अब अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहती है। अब ये वही सिचुएशन है जो बाकी कई लोगों की यही सिचुएशन है कि भाग भाग के अब कर रहे हैं। हैज सर्च द इंटरनेट एंड कॉपीड अ पार्ट ऑफ कोड एज फंक्शन। उन्होंने कुछ वहां से अपना प्रोग्राम बनाया था पर वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था उनको, या उसमें वो कुछ एडिशन करना चाह रहे थे। इन सच केस दे हैव सर्च द कंटेंट फ्रॉम अ नेट एंड व्हाट दे डू एंड इंक्लूडेड इन हर ओन प्रोजेक्ट। उन्होंने वो कोड जो था अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लिया। देन शी हैज सबमिटेड द प्रोजेक्ट, और उसके बाद उन्होंने फाइनलाइज करने के बाद प्रोजेक्ट टीचर को सबमिट कर दिया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। It's okay if it is just an academic project to be submitted as a part of course study। क्या ये बस ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो कोर्स स्टडी का ही पार्ट था, कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट सेज इट्स ओके सिंस रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कोड इज ऑफ हर ओन। वो कहता है कि दूसरा कंक्लूजन क्या है, वो कहता है कि ठीक तो है यार, बाकी तो मेरा ही है ना, थोड़ा सा ही कॉपी पेस्ट किया मैंने, उसमें क्या दिक्कत हो रही है। कहता थर्ड पॉइंट सेज इट्स ओके इफ दैट कोड इज प्रॉपरली क्रेडिटेड। उसको प्रॉपरली क्रेडिट देना चाहिए कि ये कोड मैंने वहां से लिया है। रेफरिंग टू सोर्स लिंक एंड आउटर एज अ कमेंट एंड इन लाइन विद लाइसेंस टर्म ऑफ दैट कोड। मुझे चाहिए कि अगर मैंने किसी से लिया है तो मैं उसको फुल क्रेडिट भी दूं कि मैंने वहां से कोड लिया है, और उसके कॉपीराइट्स का भी ध्यान रखूं। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा कहता है इट्स ओके इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू लाइंस ऑफ कोड। क्या हो गया फिर, थोड़ी सी 2-4 लाइन्स ही थी या 10 लाइन थी, क्या हो गया। गिव द अर्जेंट रिक्वायरमेंट एंड स्मॉल साइज ऑफ कोड, इट कैन नॉट बी कंसीडर एज वायलेशन ऑफ IPR। जो आपके लॉ है उसका ये वायलेशन नहीं है। आपको कौन सा पॉइंट लग रहा है ठीक इस पे से? थर्ड वाला लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कहता है कि इसमें हमें प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए जहां से हम लोगों ने वो कंटेंट लिया है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज दैट थर्ड पॉइंट विल बी एप्लीकेबल। मैं यहां पे कर दूंगा कि मुझे ये लग रहा है कि ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है इन स्पाइट ऑफ अदर्स। मेरा बच्चा नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना मेरा बच्चा, आप आंसर कर सकते हैं। इन एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या हो गया अभी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, नेम द क्लॉज और कीवर्ड। आप किसी क्लॉज का या कीवर्ड का नाम बता दीजिए टू फिल्टर द रिजल्ट बेस्ड ऑन कंडीशन ऑन ग्रुप रिजल्ट। अगर मैं कोई क्लॉज या मैं कोई क्राइटेरिया अप्लाई कर रहा हूं फिल्टर करने के लिए, और वो लग किसके ऊपर रहा है? ग्रुप के ऊपर लग रहा है, तो मैं वहां किस चीज का प्रयोग करता हूं? ग्रुप के केस में जैसे मैं नॉर्मली लगाता हूं ना कि select star from name of the table where name is equal to Lavdeep। तो अगर यही काम मैं जो कंडीशन वेयर के साथ अप्लाई कर रहा हूं, अगर यही काम आई वांट टू इम्पोज विद द हेल्प ऑफ अ ग्रुप, अगर जहां पे ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ कर रहा हूं, तो इन स्पाइट ऑफ वेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू? नहीं, वी आर गोइंग टू अप्लाई द हैविंग। मेरा बेटा जी, in place of where, when we talk about the concept of groups, we are supposed to mention having in spite of using a where clause। मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए ना, आपके पास कोई है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग अ डेमो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कवलजीत सर ने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT। आप समझ लीजिए कि स्टूडेंट का डाटा अवेलेबल है और उसमें एक सिटी कॉलम है जिसमें सिटी भी मेंशन है कि हर एक स्टूडेंट की एक सिटी है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैंने लिख दिया वेयर मैंने लिखा सिटी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया जालंधर, सिटी इज इक्वल टू जालंधर, मैंने एंटर कर दिया। ओके, बट अब क्या होगा? अब देखिए, अगर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, अब मैंने यहां पे लिख दिया ग्रुप बाय सिटी। अब उसका मतलब क्या हुआ?
अब एक ग्रुप बन गया सिटी के अकॉर्डिंग टू, है ना, सिटी के अकॉर्डिंग टू ग्रुप बन गया ना। अब मैंने यहाँ पे वेयर नहीं लगाना, अब मैं यहाँ पे अगर वेयर लिखूंगा तो दिस इज टू बी कंसीडर एज अ रॉन्ग ऑप्शन. व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर सपोज टू मेंशन हियर हैविंग, है ना, हैविंग. जैसे मैं लिखा ना वेयर सिटी इज इक्वल टू जालंधर, है ना, अब मैं वहां पे लिखूंगा हैविंग, और उसके बाद मेरी जो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन आएगी वो मेरी कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी. मेरे बच्चे को मेरी बात समझ आ गई है ना. तो जैसे मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और आपको इसका एग्जांपल, सेलेक्ट काउंट, मैंने यहाँ पे लिखा काउंट सिटी, ठीक है, सिटी कर दीजिए, फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल दैट इज स्टूडेंट, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने उसको बोला ग्रुप बना दो, ग्रुप बाय सिटी हैविंग सिटी इज इक्वल टू जालंधर. अब मेरे बेटे को मेरी बात समझ आई है. वो कहते हैं कि काउंट कर लो सिटी को किस टेबल में से, स्टूडेंट में, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग टू ग्रुप करना, सिटी के बाय, और हैविंग, सॉरी मैंने यहाँ पे हैव लिख दिया, इट इज हैविंग, HAVING, हैविंग सिटी इज इक्वल टू जालंधर. मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई. अब यहाँ पे हैविंग की जगह अगर आप वेयर लिखेंगे तो इट शोज दैट यू आर नॉट यूजिंग अ प्रॉपर सिंटेक्स, आप प्रॉपर सिंटेक्स का प्रयोग नहीं कर. मेरे बेटे को होपफुली मेरी बात समझ आ गई है. अच्छा, अब यहाँ पे अगला कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. यहाँ पे कहता है राइट द नेम ऑफ द एग्रीगेट फंक्शंस टू परफॉर्म टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ फील्ड इन SQL. अब देखो जरा, अब जब हम एग्रीगेट फंक्शंस की बात करते हैं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस. कौन कौन से होते हैं भाई एग्रीगेट फंक्शंस, कुछ याद है? हम इस केस में सबसे पहले यूज करते हैं सम, हम उसमें यूज करते हैं मिन, हम यूज करते हैं मैक्स, हम यूज करते हैं काउंट, है ना, ये फंक्शंस यूज करते हैं ना, हम लोग करते हैं ना. अब कहते हैं अगर किसी का टोटल करना हो तो भाई कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे तुम? वेरी गुड, अब समझ आ गया. अब हम कौन सा करेंगे, विच इज टू बी कॉल्ड एज अ सम. मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई, वेरी गुड. अब देखिएगा, राइट द नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है राइट द नेम ऑफ एनीवन DDL एंड DML. बेटा DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और DML का मतलब क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन. डेफिनेशन का मतलब स्ट्रक्चर बनाना. जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ DDL, है ना, तो उसका मतलब क्या है कि मैं बात कर रहा हूं जिसमें स्ट्रक्चर बनेगा. क्या बनेगा जी, स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर मेंशन किया जाएगा. तो उस केस में अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो मैंने आपको गाइड किया था कि आप याद रख लेना कार्ड. क्या याद रख लेना जी, कार्ड, कि डाटा डेफिनेशन, है ना, डाटा डेफिनेशन कि आप कार्ड लिख लेना. सर कार्ड का मतलब क्या हुआ, सर यहाँ पे CREATE क्रिएट, उसके बाद क्या हुआ जी, ऑल्टर, उसके बाद क्या हुआ जी, रीनेम, उसके बाद क्या हुआ जी, अब ड्रॉप. मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई. अब कहता अगर आप नेक्स्ट चीज की बात करोगे, आप लिखोगे DML, तो कवल जी सर ने क्या बोला था, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब जिसमें हम कोई इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं. उस केस में सर ने क्या बोला था, SIDU, सिडू याद रख लेना. सर उसका अर्थ क्या हुआ, सेलेक्ट. कहता ठीक है, कहता सेलेक्ट, कहता ठीक है. उसके बाद आई क्या हो गया, इंसर्ट, कहता बिल्कुल ठीक. डी क्या हो गया, डिलीट. और अब उसके बाद क्या हो गया, अपडेट. तो ये याद रखने वाली बात है ना, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. मेरे बेटे को मेरी बात समझ आई होगी शायद. चलो अब यहां देखिएगा कृपया करके. अब कहता है नेम द ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया जिसके थ्रू हम किसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे किसी डाटा को सेंड कर सकते हैं. अब हमने क्या किया, विच कैन बी कंसीडर्ड एज इकोनॉमिकल. यहाँ पे वर्ड्स को बड़ा इंफोर्स किया गया. इकोनॉमिकल मतलब कि इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा पैसे का खर्चा ना हो उस चीज में. एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर विद स्विच इन अ लैन. एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें एक से ज्यादा कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं. एंड व्हाट we are going to do is we are supposed to connect all the computers with the help of switch. And what we are going to do that when we are using switch which will be the transmission media, which will be the cable
which is justified that the cable is economical. So we have learned twisted pair cable, we have learned coaxial cable, we have learned fiber optic. In a reverse order, fiber optic is very expensive. As comparison, coaxial is also very expensive. And when we talk about a twisted pair cable, that should be considered as the economical in case we are talking about both coaxial and fiber optic cable. In that case, what we are going to say here, that we are saying that twisted pair cable is the good option in spite of using fiber optic or coaxial cable. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट आया मेरे उत्तर, मेरा बेटा वो कहता है आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल. जो नीचे यहाँ पे सॉरी इन्होंने यहाँ पे एल मेंशन कर दिया, यहाँ पे डी कर देते हैं. ठीक है, ऑफ डी. अब यहाँ पे डी की आप देखिए, ये कर्ली ब्रैकेट्स कौन से किस चीज के लिए यूज करते हैं यार, कुछ याद है? डिक्शनरी. और नीचे ऑप्शन दिए हैं आपको, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट. कौन सी ऑप्शन होगी बेटा आपकी? DICTIONARY है ना, NARY. हमने कहा कि इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट शुड बी कंसीडर एज अ डिक्शनरी. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कंवलजी सर की बात को ध्यान से सुनिएगा. दिस इज अ टेक्स्ट, this is a variable, and we are going to store a string within that particular variable. What happened here, kindly concentrate. Whenever we are going to hit enter key, it says txt and this content will be there. Now what they are saying, they are saying text index value 2:8 2:8 dot upper. अब जरा ध्यान से देखना, मैंने यहां पे बोला 0 1 2. इसका मतलब है जी जो है आपका, स्मॉल जी जो आपको नजर आ रहा है वो 2 लोकेशन पे आ रहा है. कौन से वाला? ये वाला जी. 2 3 4 5 6 एंड 7. मुझे लगता है 8 तक नहीं जाएगा, है ना, लेस देन 1 रहता है ना, लेस देन 8 रहेगा. तो इस केस में मुझे लगता है कि जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों? इसका आउटपुट होना चाहिए GITAL. मेरे को लगता है शायद यही होना चाहिए. एक बार देख लें करके, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और कंवलजी सर ने आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया. ओके, इफ एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ, देन वी हैव प्रेस द एंटर की एंड इट सेज दैट दिस इज अ कैपिटल GITAL. मेरे बेटे को मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है. अब मेरा बेटा क्या कहता है? इन SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. टेबल का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कोई क्वेरी लिख दो, और टेबल का नाम क्या है? द नेम ऑफ द टेबल इज स्टॉक स्टोर्ड इन अ डाटाबेस. कौन सा यूज करते होते हैं स्ट्रक्चर देखने के लिए? वेरी गुड. हमने लिखा DESC, ठीक है, STOCK. और यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? डिस्क्राइब, और लिखेंगे STOCK. जो आप दोनों में से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और दोनों आपके करेक्ट कंसीडर होंगे ऑप्शन. ठीक है. नाउ राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ CDMA. मेरे बेटे को हमने करवाया था TDMA, CDMA, ये हमने किया है CD. मेरे बच्चे ने कहा CDMA. इसकी फुल फॉर्म क्या है? C फॉर कोड, DIVISION डिवीजन, मल्टीपल assess, code division multiple assess. This is to be considered as a full form of CDMA. अब मेरा बेटा कहता है what is the benefit of specifying the primary key in create table command. कहता क्या इसका बेनिफिट है? क्या इसका बेनिफिट है कि हम प्राइमरी की मेंशन कर दें क्रिएट टेबल में? प्राइमरी की किस चीज के लिए यूज होती है? वैसे थोड़ा सा गाइड करिए आप. प्राइमरी की वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली, दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिक वैल्यू. ठीक है, यूनिक वैल्यू का मतलब कि डुप्लीकेट ना हो सके. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक और इसके अंदर कंस्ट्रेंट होता है, नॉट नल. इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी की इसलिए यूज हो रही है कि दैट वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू, द वैल्यू विल बी यूनिक. And second important thing, that they are never accepting a null value. काली वैल्यू नहीं रहने देगा. But in case of a unique key, which again works similar to a primary key, but this second constraint is not there, they accept a null value. But primary key never accepting a null value. वो accept नहीं करता. Okay. Hopefully. Okay, last question.
dash parents has to recharge the mobile internet equipped with 2G. 2G stands for second generation internet plan to facilitate the education of dash to accomplish face to face interaction with teacher during lockdown period. Do you agree that the parent has chosen the right technology method? Justify your answer. आपको लगता है कि that if somebody is using a 2G technology, then it is appropriate for online classes? No. Why so? Because 2G never supports a concept of a ऑडियो वीडियो इंटरफेस. जो आप अभी जूम यूज कर रहे हैं या गूगल आप गूगल मीट यूज कर रहे हैं या many more options will be there जो आप कर रहे हैं, which is not supported by a second generation. It means it is better to opt for a 4G because it provides a high speed and the connectivity. Then it is very appropriate and easy for the user to assess the content which is being available by the teacher. मेरे बेटे को मेरी बात क्लियर है? Due to the constraint of timing, my dear respected students, it's my humble request that this same content will be available in a description box if you want to download that content, both question paper as well as answer key, because there is more questions will be there for practice. In such case, you are going to download and do practice at home, which helps you for getting good marks. Thank you very much and God bless you.